भाई जाना भी क्लास हो गई है, छोड़ना। All right, everyone. We're back. So we left learning on the ionic bond, and I told you that the ionic bond is formed between a metal and a non-metal, where the metal will lose electrons and the non-metal will gain electrons. कौन से metals कितने electron lose करते हैं वो उसके group number पे depend करता है. कौन से non-metals कितने electrons gain करते हैं वो उसके group number पे depend करता है. As you saw, group 1 will lose 1 electron, will get a charge positive 1. अगर एक electron lose करेगा तो stable configuration बना लेगा. Group 2 plus 2, group 3 it's plus 3, group 4 it's plus minus 4. फिर group 5 पे electrons gain होने शुरू हो जाते हैं. Right? So it's negative 3, group 6 is negative 2, group 7 is negative 1, and group 8 is no charge. Following this concept, guys, we start off. So listen, please, very carefully. There we go. Let's take an example. Sodium chloride, NaCl. अच्छा, sodium is 11. Sodium 11 होता है, so it's 281, and chlorine is 17. It's 287. तो इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम फर्स्ट ग्रुप में क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन सेवेंथ ग्रुप में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो फिर सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड द क्लोरीन विल गेन दैट 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अगर मैं यहां बनाऊं सोडियम, राइट, इट्स 2 8 एंड 1. पहले मैं एटम बना रहा हूं 1, एंड क्लोरीन क्या है? It's 2 8 and 7. Right?
तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, सोडियम विल एक्चुअली टेंड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम जो है वो बन जाएगा सोडियम आयन Na+1, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8 नाउ, एंड क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वो बन जाएगा Cl-1, तो हो जाएगा 288। तो 28 इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, so it is the stable configuration. It's actually a noble gas configuration. Chloride में भी आप देख लें, third shell में there are 8 electrons, right? It means this is also a stable configuration, or you can say the noble gas configuration. Now what happens is sodium electron lose करेगा, जब electron lose करेगा तो shell भी lose होगा, और वो electron ये gain कर लेगा, इसने electron gain कर लिया, तो इस पे charge क्या आ गया, +1, और इस पे आ गया -1, and this carries 2 marks in the paper. The first mark is क्या आपने ये charges ठीक लिखे, that's the first mark, and the second mark is क्या आपने electron transfer show किया, yes, I think electron transfer is shown, as you can see here, electron transfer हुआ, and it's got 2 marks. Now sodium ion and chloride ion will attract. As soon as they attract, it forms NaCl, and the compound produced is called as ionic compound. And please remember, ionic bond is shown with the charges. ये मैंने charges show किया, अगर मैं कहूँ ना ionic bond show करें, तो आप यहाँ पे charges show कर सकते हैं ionic bond से, right? लेकिन please Na और Cl में ये line ना बना लीजिएगा, line का मतलब covalent bond होता है, please, ठीक है? It's strong. No, but I won't. No, I won't. They have to come on time. ये कल से 5 के बाद मीटिंग लॉक हो जाएगी, ठीक है? और बीच में नमाज आती है तो मीटिंग लीव करने की जरूरत नहीं है, यू कैन म्यूट इट, राइट, एंड यू कैन टर्न द वीडियो ऑफ. आई मीन इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, तो आफ्टर 5:05 के बाद यू वोंट बी एबल टू जॉइन द क्लास, प्लीज, ठीक है? आई होप आई मेक इट वेरी मच क्लियर. द स्टूडेंट्स कम इन, ताकि मैं ये बात दोबारा क्लियर कर दूं. So those students who have just joined now, please make this thing very much sure that at 5:05 the meeting will get locked. You won't be able to rejoin the meeting again, right? नमाज के लिए आप जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आप म्यूट करें, वीडियो ऑफ करें और आप नमाज पढ़ लें. As simple as that. There is no need to leave the meeting because you won't be able to join next time. I hope I make it clear, right? So guys, now this is NaCl ionic compound, NaCl, where the metal lost electron and the non-metal gain electron. और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आगे एग्जांपल से ये बात आने भी वाली है, इलेक्ट्रॉन लॉस हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन के इक्वल होता है. जितने इलेक्ट्रॉन लूज होने उतने गेन होने होते हैं. ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन लूज 3 हो जाएं और गेन 2 हो जाएं. Now this is not possible, right? So please remember, the number of electrons lost should be equal to the number of electrons gained. अब मेरी बात प्लीज बहुत गौर सुने, फिर of course I'll show you the diagrams, you get dot and cross diagrams, get dot and cross diagram which shows the ionic bond. Moving on now. Sir, aren't these dot and cross diagrams? Sorry, please go on. Sir, aren't these diagrams dot and cross ones? Yes, this is a dot and cross diagram. This is a dot and cross diagram, right? Which we ask you in the paper as well. You show the dot and cross diagram of NaCl. So you show it like this way, right? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एरो शो करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करते हैं. मेरे ख्याल से वो आपसे खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं. उसका नाम मार्क है, राइट, ना कुछ है. आप बस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर शो करके आप उसके आयन शो कर दिया करें. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके सर, थैंक यू. सर ये चार्जेस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपने क्यों लिखा है? मैंने कहा था कि इसके 2 मार्क्स होते हैं असल में. ये जो आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शो करने के 2 मार्क्स हैं, तो ये हैं वो 2 मार्क्स
क्या आपने सही चार्ट शो किया? यस। क्या आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो किया कि देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे आया है? यस। इफ दीज टू आर शोन तो यू स्कोर 2 मार्क्स फॉर दैट। सही है सर। तो पेपर में किसी एलिमेंट की आ सकती है डॉट एंड क्रॉस? एलिमेंट, अगर आप एक एलिमेंट की बना रहे हैं फिर तो आप एटम बना रहे होगे ना, फिर तो यहाँ डॉट बनाएंगे या क्रॉस बनाएंगे। एटम बनाना होगा, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है। So are we supposed to show these atomic shells in the dot and cross diagrams? अगर तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कहता है ना कि शो द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ NaCl, तो फिर तो आपको ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये असल में कहना चाह रहा था कि रादर यू मेक अ सोडियम एटम फर्स्ट देन क्लोरीन एटम, फिर आप उनके आयंस बनाएं, राइट? सो इट बिकम्स टीडियस। आप स्ट्रेट अवे आयंस बना लें। No, but are we supposed to show the atomic shells? Yes, you're supposed to show that. Okay. Thank you, sir. No problem. Okay, moving on. Now observe. Let's say, for example, I say that you draw a dot and cross diagram to show the bonding in sodium oxide. याद रखिए सिर्फ आउटर शेल जो बनाते हैं वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में। आयोनिक बॉन्ड में वी मेक ऑल द शेल्स अनलेस यू स्पेसिफाई यू वी मेक ऑल द शेल्स, और नॉर्मली आयोनिक बॉन्ड में सारे शेल्स दिखाते हैं। नाउ सोडियम इज 281 फ्रॉम द periodic table। फटाफट periodic table खोलें, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? इट्स 281, इट्स इन फर्स्ट ग्रुप। ऑक्सीजन इज 8, इट्स 26। चलें अब मुझे प्लीज anyone can give me a shout, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? 1 से ब्रिलियंट। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ऑक्सीजन ने लूज करने हैं, गेन करने हैं? बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बाय द वे? 2 से 2 ये बन जाएगा 28। ब्रिलियंट। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन एक लूज करना है, उसके पास एक लूज करने की एबिलिटी है, लेकिन ऑक्सीजन ने 2 गेन करने टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो लेकिन एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन ने अब आप 2 गेन करने हैं, तो हाउ विल द इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस आउट? Sir, those sodium only. Na2 लेंगे। एग्जैक्टली, इसलिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला इज Na2O। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O क्यों है? Why it is Na2O, right? एक तो पहली बात, एक तो रटा है, वो रटा क्या है? Na पे चार्ज क्या होता है? +1। ऑक्सीजन क्या होता है? -2। तो आप इसको स्वैप कर देते हैं, आप बनाते हैं Na2O, as simple as that। लेकिन what's the concept? So the concept is that there have to be 2 sodium ions to balance with 1 oxide ion। 2 सोडियम आयन होंगे तो एक ऑक्साइड को बैलेंस करेंगे। तो जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे Na2O। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि याद रखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। दैट्स व्हाई द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। सर ये नाम कैसे डिड्यूस करते हैं? ऑक्साइड, क्लोराइड, चेंज और ज्यादा जो। यस, मैं भी इस बात पर आने लगा हूं। Okay, shall I go on, everyone? No, sir. एक second. Okay.
सर अगर हम Na से पहले 2 लिख लें या Na के बाद सब टेक्स्ट में 2 लिख लें तो डज इट मीन द सेम थिंग? Yes, basically Na2O जहां पे हमने 2 लिखा हुआ है एज अ सबस्क्रिप्ट, इसका मतलब है 2 sodium ions are balancing of 1 oxide ion. इसको इस तरह लिख लें अपन, आई मीन एज अ कॉन्सेप्ट, ये तो एज अ कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन एज अ फॉर्मूला इस तरह लिखा जाएगा. ओके सर, थैंक यू. नो प्रॉब्लम. Okay, moving on now. So guys, sodium. अब रादर मैं एटम बनाऊं, मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन लूज होना है, तो इट्स 2 8 एंड चार्ज +1. अब मुझे सोडियम 2 बनाने हैं. अगर मैं 2 बनाऊंगा तो आई थिंक यहां भी टाइम वेस्ट होता है, तो एग्जामिनर्स कहते हैं ओ लेवल और IGCSE के कि आप साथ में 2 लिख लिया करें, राइट, रादर मेकिंग 2 sodiums. इफ यू वांट टू मेक 2 sodiums यू कैन मेक 2 sodiums, या एक ना के साथ में 2 लिख दें आप बेशक, ठीक है. और ऑक्सीजन 2 6. तो टेक्निकली इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक सोडियम से और एक सोडियम से, तो फिर इस पे चार्ज क्या आ गया, -2, and you score 2 marks. Why? Because you have shown the electron transfer and you've shown the correct charges. Now please remember, ये मेटल था जिसने मेटल आयन दिया, ये नॉन मेटल है जिसने आगे नॉन मेटल आयन दिया. फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेटल था ये सोडियम था, ये जो नॉन मेटल था ये ऑक्सीजन था. तो प्लीज रिमेंबर, जब मेटल आयन देता है तो उसका नाम वही रहता है, इसका नाम वही रहेगा, सोडियम. When a metal gives metal ion, the name remains same. Magnesium atom, magnesium ion. Sodium atom, sodium ion. Aluminium atom, aluminium ion. लेकिन जब नॉन मेटल आयन देता है तो उसका नाम चेंज कर जाता है. ऑक्सीजन है तो इट बिकम्स ऑक्साइड, IDE लग जाता है इसके आगे. अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, राइट. अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड. तो रिमेंबर, जब मेटल आयन देगा तो नाम चेंज नहीं करता, लेकिन जब नॉन मेटल आयन देगा तो उसके एंड में IDE लग जाएगा. जी जी बच्चा. सर व्हाट इफ हम लोग अपनी तरफ आउटर मोस्ट शेल बनाएं? नहीं, नो. जब तक हम आपको पेपर में स्पेसिफाई ना कर दें कि शो द आउटर मोस्ट शेल, तब तक आप ने सारे शेल बनाने होते हैं, unless we specify you that show the valence shell only. प्लीज रिमेंबर. और वैसे भी याद रखिएगा, आयोनिक बॉन्ड में हम सारे शेल्स शो करते हैं. ये जो हम आउटर शेल वाली स्टोरी है, नॉर्मली हम कोवलेंट बॉन्डिंग में शो करते हैं. ओके. Sir, could you please repeat the whole thing you said about the suffixes? Yes. So basically, whenever a metal atom forms a metal ion, the name remains same. Sodium atom, sodium ion. Name में change नहीं आया. But whenever a non-metal forms an ion, right? तो फिर IDE as a suffix लग जाता है. क्लोरीन है तो क्लोराइड, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन एटम है तो फिर ऑक्साइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड, right? So the metal ion and the metal atom have same names. लिख ले बच्चों यहाँ पे, metal atom and metal ion have same names. Non-metal ions name has IDE as a suffix to its non-metal atoms. All right. Sir, can you please tell why have you written 2 next to Na shell? ये बेटा इसके 2 marks हैं.
No, sir. NaCl shell, left side. The left side. Oh, क्योंकि हम सोडियम ऑक्साइड का बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे सोडियम 2 हैं, तो rather making 2 sodiums, I made 1 sodium and wrote 2 along with it. Thank Just you, to save sir. time. No problem. तो ऊपर वाला चार्ज +2 नहीं होना चाहिए अगर नहीं, एक एन में तो +1 ही आएगा ना बेटा. When a non-metal reacts, it is called an ion. Yes. Whenever a non-metal will react, it will form an ion, of course. When ionic bond is being formed. In the covalent bond, what's it called then? नहीं, वो तो बात की स्टोरी है अभी. जब नॉन मेटल आयन बनाएगा, जब आयोनिक बॉन्डिंग हो रही होगी, जब नॉन मेटल आयन बनाएगा, राइट, तो उसके नाम के आखिर में IDE भी आ जाएगा. तो नॉन मेटल atom will always form a non-metal ion whenever an ionic bond is produced, and its name changes to IDE as a suffix. Okay, shall I move on, everyone? अब यहीं से the story of some more atoms and ions start. Listen to my words, please, very carefully. Does a non-metal get called ID only for 2 metal ions? देखें जी, for example, जी मुस्तफा, I'm taking your question only. ठीक है, सोडियम NaCl, तो Na पे चार्ज +1 है, Cl -1 है, इसका नाम क्या होगा? सोडियम. लेकिन ये नॉन-मेटल आयन है, तो इसका एटम क्या था? क्लोरीन. इट्स क्लोरीन, लेकिन इसका आयन इज कॉल्ड एज क्लोराइड. So whenever a metal forms an ion, its name remains same. Whenever a non-metal forms an ion, its name changes to IDE as a suffix. Okay. Great. Now guys, please